Hello dear student, how are you? I hope you all are fine. So student, in previous video we discussed about overlapping and we have done p pi overlapping means s orbital, sp orbital and pp orbital overlapping. And there is mainly two type of overlapping, axial overlapping and side by side overlapping. So in this video we discuss about p pi d pi overlapping, and also we discuss about d pi overlapping. Actually, when you found this type of overlapping in book in NEET IIT question, then you face many problems. You not able to solve this. And if he ask which type of overlapping present between the molecule, then you not able to decode how many p pi and how many d pi and how many sp. So today I tell you some concept. By using that concept you can easily find p pi overlapping, and also you can find d pi overlapping. So let us start. I think before starting this video, you remember your previous knowledge. If s orbital overlap or sp orbital overlap or pp orbital overlap but axially, then sigma bond form. It is previous knowledge. And if pp orbital, you say sir pp present here and also here, so it is sidewise overlapping, it is axial overlapping. So ppa orbital overlapping, pd orbital and dd orbital overlapping, then pi bond form. Actually there is mainly two type of bond, sigma bond and pi bond. If any bond present, then first bond will form sigma bond and remain bond will be pi bond. If not present more than one bond, then only sigma bond present. Okay, let us start. So according to your chapter number 2nd, it is a double dumbbell shape and p orbital is a dumbbell shape and it is double dumbbell shape. So it is a shape of p orbital, regarding to previous video. So in this video we discuss about how it overlap. Listen. So actually it is p orbital and it is d orbital. When p orbital and d orbital overlap, then we say p pi d pi. Okay. If d orbital overlap together, and then we say it is d pi overlapping. Okay, let us start. So I take an example. By using example we try to find out what is the real value. So I take example, that is a CO2. You can also take SO2. Chaliye. So before drawing the structure we need some basic information, that is electronic configuration. So हम किसी एक का ले लेते, चाहे इसका लें चाहे इसका लें, तो हम सल्फर का ले लेते हैं और ये आप खुद से करिएगा कि कौन सी ओवरलैपिंग इसमें पाई जा रही. So first we start electronic configuration. Sulfur 16, so electronic number 16, so 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2 and 3p4. And now how many oxygen? 2 oxygen. So oxygen have atomic number 8. Its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Okay. It means both are same period, same group member. Okay, not same period, same group member and same block member. So but how we find overlapping, मतलब हम overlapping को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इसको इरेज करते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर आपको निकाल करके दिखाते हैं. चलिए, इस ओवरलैपिंग को दिखाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इनके ऑर्बिटल्स को ड्रा करने होंगे. हम लास्ट के 2 ऑर्बिटल ड्रा करेंगे और इसके भी लास्ट के 1 ऑर्बिटल, क्योंकि ये सब के सब भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ है. चलिए देखते हैं. सल्फर के लिए, सल्फर सेंट्रल एटम है, ये हमारा हो गया कौन सा ऑर्बिटल, 3s, मतलब ये हो गया s ऑर्बिटल. ठीक है, 3s ऑर्बिटल. और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3p ऑर्बिटल. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2. ये देखिए 2. p में कितने, 4. तो वुंड रूल से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल. इसका नाम आपको पता ही होगा, px, py एंड pz. चलिए देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है. अगर हम बात करें सल्फर का, तो सल्फर से ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है. एक ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड. लेकिन यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं. तो क्या ऑक्सीजन इन 2 से बना लेगा, नहीं.
इसको तो कितने चाहिए, 4 बॉन्ड में तो 4 अनपेयर ऑर्बिटल चाहिए। इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब हम इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इलेक्ट्रॉन की कराएंगे अनपेयरिंग। अब आपको पता है अगर इसके बाद क्या आएगा, 3p के बाद क्या आएगा, फिर आपका हमारा आएगा 3d आएगा। तो इसके बाद हम वो ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि जस्ट इसके बाद आने वाला हो। तो हम ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, हम अपना ग्राउंड स्टेट से ले जाएंगे इसको एक्साइटेड स्टेट में। और कितने एक्साइटेड स्टेट होंगे इसके, होंगे तो बहुत, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया होगा, 3p से कहाँ चला गया 3d। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 3d और ये क्या था आपका 3p। और यहाँ से हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराया होगा, निकाल दिया, इधर आ गया। ठीक है, तो अब ये जब इधर आया होगा तो यहाँ पर भी ये हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब समझिए कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। और इस स्टेट को हमने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट, और इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये पहला इसका एक्साइटेड स्टेट है। अब चलिए देखते हैं, अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। 4 ऑक्सीजन के लिए 4 अनबैलेंस है, मतलब अनबैलेंस नहीं कह सकते आप, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहिए, अनबैलेंस भी है अगर स्पिन सेम नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा ऑक्सीजन का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आकर के इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हटाते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे ना, ये देखिए ऑक्सीजन का भी हम ड्रा कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन का जब हम ड्रा करेंगे तो क्या, एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी हम यहीं पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब आपने देखा इसका किस में गया था इलेक्ट्रॉन, अभी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेज किया है उसमें क्या था, 2p में था, 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इधर हो गया, 2 इधर अनपेयर हो गए। इसके साथ भी वही कंडीशन है, दूसरा वाला ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लगे थे ना, इसके साथ भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, अगर हम देखें इनका नाम आपको पता क्या है, px py pz, ये क्या है, ये d है, d x y d x z d y स्क्वायर d y z एंड d x स्क्वायर y स्क्वायर d z स्क्वायर, ये होते हैं इनके नाम। अभी वहाँ पे आपको नहीं जाना है। तो चलिए पहले आपको पता है कि ऑक्सीजन जब यहाँ था, देखिए फिर से एक बार देखिएगा, ये लोन पे इसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, जाहिर सी बात एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मतलब एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, किसके साथ बना होगा, देखिए px py एंड pz, ये क्या था, px py एंड pz। अब एक ऑक्सीजन इसका सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसका भी एक ऑक्सीजन बना लिया सिग्मा बॉन्ड। अब जो बाकी बचे हुए हैं हमारे ऑक्सीजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो बनाएंगे कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये वाला क्या है, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड हमने सबके बना दी, एक इसके साथ गया होगा तो बन गया होगा सिग्मा बॉन्ड। चलिए ये मान लीजिए आया हुआ इलेक्ट्रॉन, ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 बचते हैं, इसमें क्या बचा है, p बचा है, pz से ये इसमें चला गया, और इसमें क्या बचा है, ये बचा है, ये इसमें चला गया। तो अब देखिए ये कौन सा बना, देखिए p से p में गया तो ये होगा p पाई, और ये p से कहाँ गया, d में, तो ये क्या बनेगा, p पाई d पाई। अब आपको समझ में आया। देखिए तो अगर इसने पूछे हाउ मेनी p पाई d पाई, तो यहाँ देखिए ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसे तो काउंट नहीं करेंगे सिग्मा को, हमें p पाई d पाई काउंट करना है ना। तो ये देखिए ये p से p बना, तो एक बनेगा हमारा p पाई, और ये देखिए एक pz से गया है d वाले में, तो ये बनेगा दूसरा p पाई d पाई। कितने बनेंगे, एक। तो ये हमारा आंसर होता है जब हमारे AI में, मतलब कि IIT में पूछता है या फिर नीट में पूछता है, तो यही पूछता है ना, इसमें कितने p पाई कितने d पाई है, कितने p पाई d पाई है।
तो ये देखिए इतना आसान तरीका, आप बिल्कुल आसान तरीके से निकालिएगा, बहुत सिंपल था। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब इसको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं डी पाई में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चल हम एग्जाम्पल कुछ सिमिलर ही लेंगे ताकि हमें ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, क्योंकि एक ही वर्क बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, SO3। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं हाउ मैनी। इसको भी हम हटा ही देते हैं, कोई काम तो नहीं है, आपको तो बता दिया ना कि इसमें क्या बनता है, ये सब पुरानी बातें हैं। हाउ मैनी P pi and P pi D pi and D pi overlapping being present। ठीक है, कितने हैं? चलिए बात कर लेते, देखते पता चल जाएगा। पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम चुनेंगे। सल्फर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने देखा था, क्या आया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4। क्या करेंगे, इसके हम ऑर्बिटल्स को ड्रा कर लेंगे। पहला क्या हमारा 3s है, तो हम इसको लिख देंगे 3s। दूसरा क्या हमारा 3p है, तो इसको भी हम बना लेंगे। कितने हैं, 4 हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए, 3p के बाद तो आना चाहिए 3d, उसको भी अभी बना लेते हैं। अभी एक बार में करेंगे फटाफट, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। इसका क्या नाम है, 3d। किसके लिए था ये, सल्फर। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 3। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है, नहीं पता तो आप जाके वीडियो पिछला देखिए, वहाँ पे बताया गया है। तो आप देखेंगे SO3 का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। हमने आपसे बहुत पहले बताया था, कोई भी बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा होगा। ये क्या होगा, पाई होगा। ये क्या होगा, पाई होगा। ये क्या होगा, पाई। अब इसी पाई के बारे में पूछ रहा कि कौन सा पाई है, पी पाई है, पी पाई या पी पाई डी पाई या फिर डी पाई पी पाई है, जो भी होगा डी डी होगा। चलिए देखते हैं कितने ऑक्सीजन है, 3। तो तीनों ऑक्सीजन को हम यहाँ कर लेते हैं ड्रा। सारे ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे इसका बना लेते हैं एनर्जी लेवल, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। तो कितना, यही हम लास्ट वाला बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो अनबैलेंस है हम उसी से बात करेंगे, चर्चा उसी की होगी। तो चलिए इस ऑक्सीजन के लिए पहले बनाते हैं, कौन सा है ये, 2p है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। नाम क्या होगा ये, px py pz। इसके लिए भी ऐसे बना लेंगे। अभी हम एक्साइटेड स्टेट वाला शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्या है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में कैसे ले जाते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका px py एंड pz। चलिए समझिएगा, px py एंड pz। ये किस ऑक्सीजन के लिए था, तीसरे ऑक्सीजन के लिए। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, 6 बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2। क्या इसमें बॉन्डिंग संभव है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ले जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और ये हो जाएगा इरेज। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन अब गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। चलो भाई इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। हमने आपको पहले से बताया था स्पिन कैसी होनी चाहिए, इसकी अपोजिट होनी चाहिए। तो सारी की स्पिन हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। अभी इसका जो हमारा है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या हुआ, 4 हुए। लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 2 4 2 6, 6 अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए या अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी हम क्या करा देंगे, यहाँ से मूव करा देंगे। मतलब ये अब चला गया किसमें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। इसको 3 स्टेप में करते हैं, हम आपको डायरेक्टली करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमने आपको पहले समझा दिया है। अब क्या होगा भाई, अब होगी इनकी सीधी सीधी बॉन्डिंग। तो पहले सारे ऑक्सीजन एक एक क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। चलिए ये S वाले से बना लिया एक सिग्मा बॉन्ड। ये वाला किससे बनाएगा,
ये वाला ऑक्सीजन भी एक सिग्मा बनाएगा ना, तो ये इससे बना लिया सिग्मा बॉन्ड। फिर ये वाला किससे बनाएगा, ये भी इससे एक बना लिया सिग्मा बॉन्ड। चलिए बचते हैं दो तीन, सॉरी बचते हैं अभी तीन, 1 2 3। ये किसका है, पी का है, और ये किसका है, डी का है। अब ये ऑक्सीजन जो इसका एक बॉन्ड बचा है, इसका भी एक बॉन्ड, इसका भी एक बॉन्ड, ये कहाँ चला जाएगा देखिएगा। अब ये लेके अपना ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, और ये लेके चला जाएगा इसके पास, ये लेके चला जाएगा इसके पास। देखिएगा ये कौन सा था ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ये कौन सा था, अभी भी ये पी के पास गया। देखिए ये क्या रहा होगा, ये पी एक्स है, पी वाई और पी जेड है। ये तो आपका डी वाला है। तो अब ये चला गया यहाँ, तो ये कौन सी बॉन्डिंग बनी होगी, पी पाई से पी पाई। देखिए सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या बना, पी पाई टू पी पाई। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। अब चलिए इस पर बात करते हैं। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड इसका भी बन चुका, अब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये कौन सा ऑर्बिटल, पी, ये कौन सा ऑर्बिटल, डी। अब आपको पता होगा क्या होगा, ये डी एक्स वाई होगा। तो अब यहाँ जो बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा, पी ऑर्बिटल के साथ डी ऑर्बिटल, मतलब पी पाई टू डी पाई। समझ में आ गया, पी पाई टू डी पाई। अब बात कर लेते हैं इसमें, सारी बॉन्डिंग तो सिग्मा बॉन्डिंग हो चुकी थी। ये कौन सा ऑर्बिटल, पी, ये कौन सा ऑर्बिटल, डी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, देखिए पी से है तो पी बनेगा पी पाई, और दूसरा क्या बनेगा, डी पाई। आया समझ में। अगर इसी तरह से हमारा डी वाला डी में जाता तो क्या बनता, डी पाई टू डी पाई बनता। तो अब आप देखिए कितने पी पाई बने हैं, पी पाई, मतलब 2 बना है पी पाई, और एक क्या बना है, पी पाई टू डी पाई, और डी पाई कोई बना नहीं। तो इस तरह से आप इसकी बॉन्डिंग करा करके काउंट कर सकते कितने पी पाई बने, कितने डी पाई बने हैं। तो अब इतना ही, थोड़ा सा आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसमें हमें बताइएगा कि किस प्रकार की बॉन्डिंग है। और जो क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं सबके सब AIEEE मतलब IIT के हैं, नीट एंड EET के हैं। आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा, और नहीं आता तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, स्किप मत करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। आपको करना है फाइंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पी पाई कामा पी पाई एंड डी पाई bonding in given compound। ठीक है, पहला हमारा कंपाउंड है H3PO4, दूसरा है H2SO4, तीसरा है Na2SO4। समझिएगा, ठीक है। और भी अगर आपको चाहिए और आप लिख सकते हैं, बस इतना ही। एक और कर लीजिएगा CH4, दूसरा होगा CCl4, ठीक है। और अगर आपको कुछ करना, जाने दीजिए, इतना बहुत है ETC। इसमें आपको निकालनी है किस प्रकार की बॉन्डिंग है। अगर आप इतने पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग में कंफ्यूजन नहीं आए होगा, मतलब कि आपको अब कभी भी BBT में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब BBT खत्म हो गई है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे मोटी, क्या मोटी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। स्टूडेंट हमने देखा जो आपका व्यू पॉइंट है, तो उसमें हमने देखा अधिकतर जो ऐसे बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसे वीडियो देख रहे हैं, तो कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमने जो देखा है कि अभी किसी ने कमेंट में हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब या तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बट एक लाइक तो बनता है, आप देखिएगा इस पर। कोई भी नीट का क्वेश्चन होगा 5 से 7 सेकंड में आप निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।